Hello student, I am Faizan sir. How are you? I think you all are fine and good, and I hope you understand much better your chapter after my explanation. So I start the today topic from chapter 2nd, biology, the reproduction in flowering plant. This is my fifth lecture from this chapter. Before it, in this chapter, we are discuss about the different parts of flower, and in fourth video lecture, we are discuss some numericals which are related to your syllabus. Now, in this video lecture, we are discuss about pollination and double fertilization. So now I start topic pollination. The transfer of pollen grain from anther to the stigma of flower is known as pollination. In case of pollination, pollen grain are transferred from anther of the flower to the stigma of flower. यहाँ पे हो क्या रहा है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर किए जा रहे हैं एंथर से स्टिग्मा पार्ट तक फ्लावर के. दिस प्रोसेस आर कॉल्ड पॉलिनेशन. अब इसकी नीड क्यों पड़ी? जैसा हम लोग जानते हैं हमारे प्लांट के अंदर कोई भी ऐसे पार्ट नहीं होते जहाँ उनके अंदर मूवमेंट होता हो. जबकि अगर हम लोग बात करें एनिमल स्पीसीज की, तो एनिमल के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन स्पीसीज, they are copulated with each other. Due to this, they are easily transfer and exchange their gamete. If we talk about some birds, some birds are produce sound for attraction of their other partner for copulation. On the other hand, some birds also produce a different type of dancing pattern for the attraction of other sex. And some bird reported that different type of flying pattern for the attraction of their partner. So in the all cases, the animal species attract with each other and they have capacity to movement, so they are directly contact with each other and exchange their gamete. But if we talk about plant cannot show the a type of movement. So in case of plant, the special mechanism occurs. This process are known as pollination. तो यहाँ पे pollination के थ्रू हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट्स के कांटेक्ट में आ सके. लेकिन एक्चुअली अब मूवमेंट किसका हो रहा है? मूवमेंट हमारा हो रहा है पॉलन ग्रेन का. अब पॉलन ग्रेन का मूवमेंट बायोटिक हो सकता है या एबायोटिक हो सकता है. बायोटिक मीन्स इफ द प्रोसेस ऑफ pollination occurs through the living species such as insect, bird, human, other animal, so it is known as the biotic pollination. If the process of movement occurs abiotic, it means the process of pollination occurs through the air, water and other abiotic component, so this activity are known as the abiotic pollination. तो यहाँ हम लोग इस तरह से different type of pollination के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. So first of all, I am going to start the types of pollination: self pollination and cross pollination. So if the process of pollination occurs in same plant and same flower is known as self pollination, and cross pollination is a condition in which the process of pollination occurs to the different plant body. Here same plant are known as self pollination, different plant so cross pollination. Now self pollination again divide into two main categories: autogamy and geotogamy. So first of all, discuss about autogamy. Autogamy is the type of self pollination in which
the process of pollination occurs at the same plant and same flower. Here the process of pollination occurs in the same flower. This is the main criteria of this type of pollination. It is necessary that the process of pollination occurs in the same flower. So the autogamy type of pollination reported in case of pea, peanut, groundnut and some leguminous plant also. Now I am going to discuss with example of pea plant. Here this is a pea flower where a single gynosium is present and number of anthers are present, but they all are covered with the petal of the flower. So it is impossible that the outer pollen grain comes and fertile with the gynosium. पी प्लांट में क्या होता है? पी प्लांट में होता यह है कि हमारे पास जो मेल गैमेट होते हैं, ये मेल गैमेट और जो हमारे पास मेल पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, दोनों ही के दोनों एक फ्लावर के थ्रू अंदर कवर रहते हैं. यहाँ इसके जो पेटल होते हैं, दिस पेटल कवर द होल प्लांट, होल फ्लावर बॉडी. अब इससे क्या होगा? इससे उनको बेनिफिट ये मिलता है कि बाहर से कोई भी दूसरा पॉलन ग्रेन इनके अंदर एंटर नहीं कर पाता है. एक बार फ्लावर बनना स्टार्ट हुआ तो पूरा पेटल कवर कर लेगा इसको. जब पेटल कवर कर लेगा तो कवर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जितने भी पार्ट हैं वो सबके सब पेटल्स कवर हो चुके हैं. तो अब पॉलन ग्रेन बाहर से नहीं आ पाएगा. तो जब भी यहाँ पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन अंदर प्रेजेंट पॉलन ग्रेन के ही थ्रू होता है. तो यहाँ पे अब जो पॉलिनेशन हो रहा है वो सेम प्लांट और सेम फ्लावर के बीच होगा, क्योंकि फ्लावर तो उसी प्लांट पे लगा होगा. लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है? हमारी सेम फ्लावर. सो ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ऑकर्स द पॉलिनेशन इन द सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर स्पीसीज सच एज pea, peanut, groundnut and leguminous plants, some leguminous plant. Now geotorogamy. Geotorogamy is a type of cell pollination process in which the process of pollination occurs at the same plant but different flower. Here the two main point, number one, same plant, number two, different flower. अब ये क्या बोल रहा है इसको देखते हैं. सपोज दिस इज अ प्लांट बॉडी एंड नाउ इट इज सजेस्टेड दैट वन फ्लावर इज हियर, अदर फ्लावर इज हियर एंड दिस इज अदर फ्लावर. So, if the process of pollination occurs at the same plant but different flower, so it is known as the geotorogamy. But here it is suggested that process of pollination occurs in same plant and same flower also. Suppose this is a flower where androecium, gynosium, all things are present. If the process of pollination occurs in same flower and same plant is known as autogamy. So this is the autogamy condition. Now if the process of pollination occurs at the same plant but different flower are known as geotorogamy. Now cross pollination. Cross pollination is the condition in which the process of pollination occurs at the different plant and different flower also. Here the plant and flower, both of them are different. तो जैसा हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो प्लांट हैं, प्लांट ए और प्लांट बी,
अब यहाँ पे पॉलिनेशन क्या हो रहा है, एक प्लांट ए से प्लांट बी की तरफ हमारा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, या प्लांट बी से प्लांट ए की तरफ हमारा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। तो दोनों ही केस में क्या है हमारे पास, दोनों प्लांट बॉडी अलग अलग है, दोनों फ्लावर बॉडी अलग अलग है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्लांट एक ही है, यहाँ पे भी एक ही प्लांट है, यहाँ पे भी एक प्लांट है, लेकिन यहाँ पे एक प्लांट होने के साथ साथ यहाँ पे पॉलिनेशन उसी फ्लावर के अंदर हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, प्लांट बॉडी एक है लेकिन फ्लावर क्या है हमारे पास, अलग अलग फ्लावर है। सो दिस कंडीशन नोन एज यूटोगैमी, दिस कंडीशन नोन एज ऑटोगैमी, एंड दिस कंडीशन आर नोन एज द जीनोगैमी, XENOGAMY. Students are very confused between these two words, deuterogamy and genogamy. Deuterogamy is the example of self pollination, while xenogamy is the type of cross pollination. Now we are discussing about the different type of cross pollination. On the basis of type of pollination या pattern of pollination, they are divided into two main categories, biotic pollination and abiotic pollination. Abiotic pollination is the type of pollination that occurs through the non-living substance. Here the pollination occurs through non-living component or substance. It is again divided into two categories, aenophily and hydrophily. Aenophily is the type of pollination in which the process of pollination occurs through air. In case of anemophily, the pollination of process occurs through the air, and this type of pollination reported in case of cotton, maize and dandelion plants, where their pollen grain are scattered through air, one plant to another plant or one place to another place. Now hydrophily. Hydrophily are the types of pollination where the process of pollination occurs through the water. Here the water current are responsible for process of transfer of pollen grain from one place to another place. This type of pollination reported in case of Melisneria, Hydrilla and water lily plant, because these all plants considered in water, so they are pollinated by the help of water. So these are the two ways of abiotic pollination. जहाँ पे एक में क्या हो रहा है, एयर के थ्रू pollination हो रहा है, it means through wind the pollen grain are transferred one place to another place, while second the pollen grain are transferred through water one place to another place. Now move to the next, biotic pollination. Biotic pollination is the type of pollination in which the process of pollination involved through the living component or living substance. Now the living component pollination again divide into number of categories. Number one, entomophily. Entomophily is a condition in which the process of pollination occurs through insects. So this types of pollination occurs in case of rose, hibiscus, salvinia and jasmine. Why these plants are pollinated through insects? The main reason behind is that this type of plant consists of colorful or good smell containing petals. Due to this, the insects are attracted towards this type of plant and they are perform their pollination. Entomophily में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो फ्लावर होते हैं ये कलरफुल होते हैं या इनके अंदर डिफरेंट टाइप के फ्रैगमेंट यानी कि स्मेल होती है, जिस स्मेल के थ्रू या कलर के थ्रू इंसेक्ट इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो यहाँ जाके बैठेंगे, उनका नेक्टर लेंगे
उसके नेक्टर से वो अपने लाइफ सर्वाइव करते हैं। और जब वो इंसेक्ट इनके बॉडी पे आकर बैठेगा, जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो इस तरह से इनका पॉलिनेशन हो जाता है। एज वी सी हियर, सपोज दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ फ्लावर बॉडी, दिस इज एंथर। मान लेते हैं कि एक इंसेक्ट आया, आने के बाद क्या हुआ, वो किसी फ्लावर के ऊपर बैठ गया। अब बैठने के बाद क्या कर रहा है कि इसके जो पैटर्न है उसके थ्रू वो उसका नेक्टर ले रहा है। अब उस नेक्टर के थ्रू उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी। अब उस एनर्जी से अपनी वो लाइफ सर्वाइव करेगा। बट एट दैट टाइम इनके जो पॉलन ग्रेन होंगे जो एंथर के अंदर लगे हुए थे, वो पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद इंसेक्ट बॉडी के ऊपर वो गिर जाते हैं। अब ऐसा नहीं खाली इंसेक्ट ऊपर ही गिरेगा, वो निकलता है, जब इंसेक्ट आके यहाँ बैठेगा तो फ्लावर में क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब जब मूवमेंट हुआ, हल्का सा हिला हो, तो इसके अंदर जो एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन होते हैं, ये पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलने के बाद अब इंसेक्ट यहीं बैठा हुआ है, तो उनके बॉडी के ऊपर ये आके लग जाता है। अब जब ये इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जाता है तो हमारा पॉलिनेशन हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, हमारा एक सिंगल प्लांट दूसरे प्लांट तक अपने पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देता है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन रिपोर्टेड इन केस ऑफ रोज, हिबिस्कस, जैस्मीन एंड साल्विनिया प्लांट। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था, लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रोटोएंड्री और प्रोटोगैनी टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं। इट मीन्स दैट इन सम कंडीशन मेल पार्ट आर डेवलप फर्स्ट, इन सम कंडीशन फीमेल पार्ट आर डेवलप फर्स्ट। अगर ये वेट करेंगे दूसरे पार्ट के डेवलप होने का, तब तक हो सकता है कि इनका जो पहला पार्ट डेवलप हो चुका था, जो मैच्योर हो चुका था, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस तरह के प्लांट मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं, जबकि इनके पास मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरेशन के वजह से ये लोग क्रॉस पॉलिनेशन का हेल्प लेते हैं, जिससे कि ये लोग आसानी से अपना पॉलिनेशन परफॉर्म कर सकें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्निथोफिली। Ornithophy is a type of condition in which the process of pollination occurs through bird. अब यहाँ पे बर्ड के थ्रू ही पॉलिनेशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये होता है कि यहाँ पे जो प्लांट होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, उनके अंदर नेक्टर हाई अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट होता है। In case of ornithophily type of pollination, the pollination occurs on that particular type of flower that consists of the high amount of nectar. For the nectar, birds attract that particular type of flower, so the birds are responsible for process of pollination. This type of pollination reported in case of berries and other fruiting plants. बेरी जो हम लोग बेर खाते हैं, मोस्टली उसमें इस टाइप के पॉलिनेशन रिपोर्ट किए गए हैं। तो वहाँ उसके फ्रूट खाने के लिए इंसेक्ट बर्ड हमारी जा रही है, या उनके फ्लावर के तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इस तरह से क्या होता है, हमारा पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट, क्राइप्टेरोफिली। क्राइप्टेरोफिली इज द टाइप ऑफ कंडीशन इन विच द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ऑकर्स थ्रू बैट। यहाँ पे पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, बैट के थ्रू हो रहा है। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन रिपोर्टेड इन केस ऑफ मैंगो, गुआवा एंड बनाना ट्री। Near about 250 species are reported in which the process of pollination occurs through bat. जैसा इसके पर लास्ट एक डिजीज आई थी जिसका नाम था निपा वायरस। तो निपा वायरस कैसा हो रहा था, बैट के थ्रू हो रहा था, थ्रू बनाना। वहाँ पे जो हमारा बैट था वो वेक्टर की तरह काम कर रहा था। तो करता क्या था कि जब वो उसके बॉडी के अंदर निपा वायरस होते थे, और जब वो किसी बनाना ट्री पे गया, वहाँ से उसने फ्रूट लिया, नेक्टर लिया, तो अपने वायरस को ट्रांसफर कर दे रहा था। जबकि निपा वायरस का इन्फेक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी में हो रहा था, जबकि बैट के ऊपर का कोई इफेक्ट नहीं था। Now the four type of abiotic pollination are known as the malacophily. Malacophily is the type of pollination in which the process of pollination performed by the mollusk.
This type of pollination occurs mostly in the watering plant. It means reported case of water lamina and chrysanthemum, where the mollusks are responsible for process of pollination. Mollusks such as Uniophylla, the number of mollusca are responsible to perform the process of pollination. So these are the different way of pollination. Now I am going to explain the next topic, double fertilization. So first of all, discuss about what is the fertilization. Fertilization is the process in which the male and female gamete are fuses with each other. Here the two different type of gamete are fuses with each other, and this process are known as fertilization. But here we are use the word double fertilization. Double means two. If the process of fusion of gamete occurs at two times, this phenomena are known as double fertilization. In case of plant, the double fertilization process are reported in case of angiosperm plant, because in this condition the one male gamete fuse with polar nucleus and form the endosperm, and the second male gamete fuse with the egg cell and form the zygote. So here two time fertilization process is performed. So this phenomena are known as double fertilization. So अब देखते हैं कैसे होती है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन टू टाइम हो रहा है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहाँ से आते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। मेल गैमेट comes from the male part of the flower, that is known as anther, and single part are known as stamen. Stamen consists of number of microspore mother cell. This microspore mother cell undergo into meiosis division and form total 4 microspores. And in this condition, all 4 microspores convert to form pollen grain. This pollen grain consists of number of male gamete. 2 male gamete consist of, mostly they are consist of 2 male gamete. Now the tube nucleus of the pollen grain are responsible for process of pollen formation of pollen tube. When this pollen grain come in contact with the stigma of flower, they start to producing the pollen tube. Now second, if we talk about female gamete comes from the female part of the flower, that is known as the gynoecium. Gynoecium also known as carpel and pistil, that consists of three main parts, stigma, style and ovary. Inside the ovary, ovules are present, and inside the ovule a single cell, that is known as the sporogenous cells. This sporogenous cell synthesize the megaspore mother cell. Now this megaspore mother cell perform the meiosis division and synthesize the 4 megaspore, in which 3 of them are regenerated, only 1 of remain. Now this single megaspore again perform the number of nuclear division. Now this single nuclear containing cell synthesize total 8 different type of cell inside it. Now these all 8 differentiated cells are again to cell differentiation process and perform the different type of cell, where 3 cells are present one pole end, and now 3 cells present on the second polar end. This polar end are known as other end and micropylar end. Now they are differentiated in the egg cell. Here the number of cells are present. They are named as egg cell, synergid cell, polar nuclei, and antipodal cell.
So in this condition they consist of 3 antipodal cell, 2 polar nuclei, 1 egg cell and 2 syncytial cell. In this condition they are consist of total 8 cell structure. So now we are talking about the fertilization process. At the time of pollination, the different type of pollen grain comes at the stigma of the flower and attached from it. Suppose this is a rose flower, gynoecium, where the different species containing flower pollen grain comes and attach. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लिया हमारे पास ये रोज का गायनोशियम है। अब इस रोज के गायनोशियम के ऊपर व्हाइट रोज, और ये मान लिया रोज हमारा है, ये व्हाइट रोज का ही गायनोशियम है, इसको व्हाइट कलर शो किया गया है। सपोज इट इज द व्हाइट रोज गायनोशियम। अब यहाँ पे व्हाइट रोज के पॉलन ग्रेन भी आ गए, येलो रोज के पॉलन ग्रेन आ गए, रेड रोज के पॉलन ग्रेन आ गए। इसके अलावा हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को मस्टर्ड का भी पॉलन ग्रेन दिखाई पड़ रहा है, हिबिस्कस का भी दिखाई पड़ रहा है, जैस्मिन का भी दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे पास सेम स्पीसीज के साथ साथ डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे अटैच कर गए। अब ये हवा में उड़ रहे हैं, हवा में फ्लाई कर रहे हैं या इंसेक्ट के थ्रू आए, तो आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि इनके ऊपर स्टिकी सब्सटेंस है तो केवल रोज वाला इसके ऊपर अटैच होगा, हिबिस्कस या जैस्मिन या मस्टर्ड का अटैच नहीं हो पाएगा। ये स्टिकी सब्सटेंस है, इनके पास क्या है, गम लाइक स्ट्रक्चर है, तो गम लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, सभी को अपने साथ अटैच कर लेगा। तो हिबिस्कस, जैस्मिन, मस्टर्ड, रोज, जितने भी डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन आएंगे वो सबके सब स्टिग्मा पे आके अटैच कर जाएंगे। लेकिन अटैच करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अटैच करने के बाद अब इनके बीच केमिकल का एक्सचेंज होता है। ड्यू टू दिस केमिकल एक्सचेंज दे प्रोड्यूस द सिग्नल दैट दे आर इंटर देयर पॉलन ट्यूब। इनको पॉलन ट्यूब को इंटर करने के लिए ये लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारे सेम फैमिली के पॉलन ग्रेन होंगे उनको क्या होगा, उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अपने पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने की। बट जो डिफरेंट फैमिली के पॉलन ग्रेन होंगे उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगी जिससे कि अपने पॉलन ट्यूब को वो लोग स्टिग्मा के अंदर इंटर कर सके, यानी कि गायनोशियम के अंदर इंटर कर सकें। सो द सेम फैमिली pollen grain enter their pollen tube inside the stigma of flower. Now they start to develop pollen tube inside the carpel. Inside the carpel. So अब ये pollen tube करता क्या है, इस pollen tube के अंदर हमारे पास मेल गैमेट है। अब मेल गैमेट को कॉन्टिन्यूसली हाई एनर्जी की नीड होती है क्योंकि हमारे गैमेट बन चुके हैं और गैमेट को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, इनको लाइव रखने के लिए मोर एनर्जी की नीड होती है। सो हियर स्टाइल में क्या होती है, सेल भरी रहती है, नंबर ऑफ सेल रहेगी। अभी करता क्या है पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब लगातार जो स्टाइल के जो सेल होती है उनको फीड करता जाता है, उनको खाता जाता है, ईट करता जाता है, जिससे कि इसके अंदर जो हमारे पास मेल गैमेट है वो उनको उससे एनर्जी प्रोवाइड कर सके। सो स्टाइल इज हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट को लगातार एनर्जी प्रोवाइड करने का हमारा स्टाइल कर रहा है क्योंकि पॉलन ट्यूब इसके अंदर इंटर कर रही है, जिसको जो कि लगातार यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे इसके अंदर के प्रेजेंट पॉलन ट्यूब लाइव कंडीशन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि अगर हमारा व्हाइट रोज है तो व्हाइट रोज ही हमेशा पॉलिनेशन करेगा। हो सकता है कि व्हाइट वाला रेड वाले साथ क्रॉस कर जाए या ब्लू वाले साथ क्रॉस कर जाए, जिसकी वजह से हम लोग को इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा रेड रोज का पॉलन ट्यूब बना, येलो का बना और व्हाइट का बना,
तो ये पॉलन ट्यूब लगातार अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में जो हमारा रेड फ्लावर का पॉलन ट्यूब था वो पहले इससे अटैच हुआ हो, उसकी पॉलन ट्यूब लंबी बन गई हो, बट ड्यू टू सम कंडीशन दे आर डिस्ट्रॉय। हो सकता है किसी वजह से डिस्ट्रॉय कर जाए, या हो सकता है डायरेक्टली आके ये से अटैच कर जाए। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है। सेकेंड, अब व्हाइट वाला बन रहा था और येलो वाला बन रहा था, लेकिन जो हमारा येलो वाला था वो येलो फ्लावर का पॉलन ट्यूब फास्ट स्पीड से बना और बनते बनते इसने जो पॉलन ट्यूब हमारा पहले बन चुका था उसको कवर कर लिया, और कवर करने के बाद इससे आगे पहुंच गया। तो जो भी पॉलन ट्यूब फर्स्ट कांटेक्ट करेगी ओव्यूल से, उसके ही मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर एंटर कर पाएंगे। अब एंट्री के बेस में यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की एंट्री नोट डाउन की गई है, जिसको हम लोग आगे इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो पॉलन ट्यूब बना, दिस पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। दिस एंड आर नोन एज द माइक्रोपाइलर एंड। Now through micropylar end, the filiform apparatus are present. By the help of this pollen tube enter their male gamete inside the ovule. अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ये हमारा pollen tube आ रहा है, आने के बाद क्या हुआ, ये filiform apparatus के थ्रू एम्ब्रियो साइक के अंदर इंटर कर गया। ये हमारा फिलिफॉर्म ऑपरेटस है। अब फिलिफॉर्म ऑपरेटस के थ्रू जब हमारा मेल गैमेट इंटर करेगा तो मेल गैमेट यहाँ पे आ गए, दीज आर द मेल गैमेट। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल उनका रोल आएगा। एक सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करती है, लेकिन बहुत से कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे पॉलन ट्यूब बनते हैं वो पॉलन ट्यूब अपर साइड से आ जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है इंटीग्यूमेंट्री पार्ट से वो इंटर कर जाते हैं। इन सम केसेस दे आर इंटर फ्रॉम द चलाइडल एंड, इन सम केसेस दे आर इंटर फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट्री एंड, इन सम केसेस दे आर इंटर फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। सपोज इफ दे आर इंटर फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट्री एंड देन द मेल गैमेट आर प्रेजेंट हियर। अब मेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है। मेल गैमेट को सर्च करना है कि हमारे जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ पे हैं। तो इसको सर्च करने के लिए एंटीपोडल सेल का रोल आता है। एंटीपोडल सेल कैसे हम करेंगे इसको देखते हैं। मेल गैमेट कॉन्टिन्यूअसली इस एम्ब्रियो साइक के अंदर मूवमेंट करते रहेंगे और उनके वॉल से क्या होंगे, लगातार वो लोग टकराते रहेंगे। अब जब वो इंटीग्यूमेंट्री सेल से एंटीपोडल सेल से जाके टकराएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये दिस सेल provide the signal to the male gamete that to go its opposite pole where the female gamete are present. जैसे ही ये हमारा मेल गैमेट एंटीपोडल सेल से टकराता है या उससे जुड़ता है, ये एंटीपोडल सेल इस मेल गैमेट को सिग्नल प्रोवाइड करती है कि मेरे ठीक अपोजिट में तुम जाओ, तुम्हें वहां पे मेल गैमेट मिल जाएंगे। इस तरह से फीमेल गैमेट मिल जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचने में इंटीग्यूमेंट्री सेल हेल्प करती है। अब हमारा एक जो मेल गैमेट है वो तो इसके साथ फ्यूज कर गया। अब एक और मेल गैमेट है, वो क्या करेगा, जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से। नाउ द फर्स्ट मेल गैमेट आर फ्यूजेस विद द एग सेल एंड सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे तो हम लोग को 2 एक्स्ट्रा सेल दिख रही है, सिनेरिड सेल दिख रही है। इनका क्या रोल होता है, जो यहाँ पे हमारे पास सिनेरिड सेल की जो साइड में होती है, इनका काम होता है एग सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एग सेल को, क्योंकि ये हमारी मेन सेल है जिसके फ्यूजन से हमारा आगे जायगोट बनने वाला है, एम्ब्रियो बनने वाला है, जिससे नया प्लांट आने वाला है, तो इस सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है। क्योंकि अगर ये सेल डेथ करेगी तो अंदर के
प्रेजेंट जितनी भी सेल है उनका कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए दो अदर सेल इनको पूरी तरह से कवर की रहती है, जिससे कि जो भी डैमेज हो, जो भी मैकेनिकल इंजरीज आए वो सिनर्जिक सेल में ही आए, एक सेल में ना आए। सो द सिनर्जिक सेल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द एग सेल। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि दो मेल गैमेट पॉलिन एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर किए। जो पहला मेल गैमेट था वो क्या किया? फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया, और फ्यूजन करने के बाद वो क्या बनाया? जायगोट बनाया। सो इट इज नोन एज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। दिस कंडीशन, फर्स्ट मेल गैमेट fused with the egg cell, and this is known as first fertilization. And first fertilization process also known as the syngamy. Syngamy, where the male and female gamete are fused with each other and form the zygote. यहां पे क्या बनता है? हमारा जाइगोट बन रहा है, जो कि 2N सेल होता है, डिप्लॉयड सेल होता है। नाउ इन द सेकंड कंडीशन, सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कितनी है? 2 है, सिंगल एन और एक मेल गैमेट आया। ये कितना हो गया? 2N ऑलरेडी है, ये यहां मेल गैमेट भी आ गया, सेकंड मेल गैमेट। नाउ they form the secondary fusion, and this secondary fusion, after fusion they are form the endosperm, and endosperm present in 3N form। एंडोस्पर्म क्या होता है? हमारा 3N फॉर्म में होता है। तो क्रोमोसोम्स के नंबर के बेस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन आया, उस पॉलन ग्रेन का नंबर क्या था? N ही था, ये हैप्लॉइड नंबर में था। इसके अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो भी क्या था? हैप्लॉइड नंबर में था। ट्यूब न्यूक्लियस भी हमारा N फॉर्म में रहा होगा। मेल गैमेट भी हमारे क्या होंगे? N फॉर्म में ही रहेंगे। अब जितनी भी हम लोग सेल देख रहे हैं इसके अंदर, एंटीपोडल सेल हो या पोलर न्यूक्लियाई हो, एग सेल हो, सिनर्जिक सेल हो, ये सब के सब मियोसिस डिवीजन के बाद बनती है। इट मींस दैट दे आर इन N फॉर्म। इट मींस दे आर हैप्लॉइड नंबर। अब यहाँ पे एक हैप्लॉइड सेल, एक सेल फ्यूज कर रही है दूसरे हैप्लॉइड सेल मेल गैमेट से, तो हमारा डिप्लॉइड जायगोट बन रहा है। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। सेकंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दो N हैप्लॉइड सेल कंटेनिंग पोलर न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं सेकंड मेल गैमेट से, तो हमारा क्या हो रहा है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जा रहा है। यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम्स के नंबर ट्रिप्लॉइड फॉर्म में है, 3 के फॉर्म में है। सो दिस इज नोन एज द 3N। नाउ इन दिस होल प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एट 2 टाइम्स। सो दिस फिनोमेना आर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। Now we are discuss about how the pollen tube enter into the embryo sac. There are the 3 ways through which the pollen tube enter into the embryo sac. Number 1 are known as chalazogamy. This is known as chalazogamy because this type of entry occurs through chalazal end. This occurs through chalazal end, so it is known as chalazo, and gamy means entry of gamy. So this process is known as the chalazogamy. When the pollen tube enter into the embryo sac through the chalazal end, this phenomena are known as chalazogamy. This type of condition reported in case of Casuarina plant. Now, if the process of pollination occurs through the integumentary end, this type of pollination are known as mesogamy. Meso means if the process of entry of pollen tube occurs through the middle point, so it is known as mesogamy, occurs through integumentary end. Mesogamy means entry of gametes, so
This phenomena are known as mesogamy. Mesogamy condition reported in case of cucurbita and Pistacia. Third one is porogamy. Porogamy is a condition in which the pollen tube enter into the embryo sac through the micropylar end. If we see the micropylar end develop a pore where the integumentary layer are not present. यहाँ पे होता ये है कि जो इंटीग्यूमेंट्री लेयर पूरे ओव्यूल को कवर कर रही है, ये एक कॉमन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, वहाँ पे ये को कवर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटे से पोर बन जाते हैं। अब इस पोर से अगर हमारा पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। एंड दिस प्रोसेस मोस्टली ऑकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट। In case of 80 to 90% plant in our environment represent the types of entry in this way, and this is condition reported in case of lily, hibiscus, rose and number of plant also. Now today video lecture is complete. I hope you understand much better this chapter.